Hello, Namaskar and a very warm welcome to all of you. My dear students, in next 15 to 16 minutes, let us learn about this very important topic which is emerging technologies. Why very important? If you go through previous year question papers as recent as June 2025, my dear students, you will find that a lot of questions have been asked lately और don't get overwhelmed अगर आपको इन questions के जवाब अभी नहीं पता. Make sure that by the end of this lecture you know answers to all these questions. First we are going to learn about the concept, then we are also going to apply our knowledge on these PYQs, and then if you wish you can also solve one more PYQ test which is on our application, which contains all the PYQs which have been asked from this particular topic in last 5 years. So let us begin. Dear students, first of all we need to understand the difference between emerging technologies and other forms of innovations. There are thousands, lakhs of technologies and innovations, but only few of them are called emerging technologies. Why? Because these are the innovations and technologies जिनके पास potential होता है इस पूरे समाज को, इस पूरी सोसाइटी में disruption लाने का, transformation ले आने का. When we talk about this transformation, it could be in the way we do our jobs, in the way we impart education, in the way we do businesses, in the way we engage with other people. So emerging technologies, they are still in the form of development and they have the potential to disrupt the society. जब हम artificial intelligence की बात करते हैं, it is the new buzzword, so it has the potential to bring disruption and structurally transform all the jobs. डियर स्टूडेंट्स, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द के बारे में बहुत बार सुना होगा, इसका प्रयोग भी किया होगा और आप इसके बारे में रोज़मर्रा के जीवन में भी सुनते आए होंगे. पर अगर हम इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें, आर्टिफिशियल प्लस इंटेलिजेंस टू सिमुलेट द ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जो ह्यूमंस की सोचने समझने की क्षमता है, जो रीज़न करने की क्षमता है, दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस पहचान लेने की क्षमता है, उन्हीं चीज़ों को मशीन्स में, कंप्यूटर्स में, स्मार्टफोन्स में, वॉचेस में, डिफरेंट डिवाइसेस में उनको एम्बेड कर देना और उन मशीन्स को इंटेलिजेंट थिंकिंग मशीन्स बना देना. जो काम ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं वो मशीन्स करना शुरू हो जाए, इसको ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं. दिस इंक्लूड्स एबिलिटीज़ लाइक लर्निंग फ्रॉम डेटा एंड एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखना, रीजनिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ए और बी के बीच में डिफरेंस पहचान लेना, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिफरेंस पहचान लेना, डिसीजन मेकिंग, परसेप्शन and understanding languages. John McCarthy, he is often regarded as the father of artificial intelligence. He coined this term in 1956. This is important because this has already been asked in a PYQ. Dear students, when we talk about emerging technologies, हमको AI टेक्नोलॉजी के सबसेट्स जैसे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जनरेटिव AI के बारे में भी सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखेंगे पिछले सालों में बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे भी पूछे गए हैं. मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक सबसेट है जिसमें मशीन्स डेटा के ऊपर ट्रेन होकर उस पर नए नए इन्फ्रेंसेस निकालती है. जैसे कि जब आप यूट्यूब का यूज़ करते हैं, नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं, प्राइम वीडियो यूज़ करते हैं, तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स मशीन लर्निंग का प्रयोग करते हैं. ये आपके डेटा पे ट्रेन होके आपकी प्रेफरेंसेस को समझते हैं और आपको उसी तरह का कंटेंट रिकमेंड करते हैं. सो मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस focused on algorithms that can learn from patterns of training data and subsequently make accurate inferences about the new data. So आपकी ही डेटा पे वो ट्रेन होते हैं और उसमें पैटर्न देखते हैं कि आपको कॉमेडी फिल्म्स पसंद है या आपको एजुकेशनल कंटेंट पसंद है, और उसी डेटा पे ट्रेन होके कुछ कीवर्ड्स जैसे कि यूजीसी नेट, पेपर वन, उसी की तरह आपको कंटेंट रिकमेंड करते हैं. सो दिस इज मशीन लर्निंग. Dear students, when we talk about deep learning, it is a subset of machine learning, जहाँ पे machine learning data के through different inferences create कर पा रहा था, but it still required human intervention. It required algorithms. Deep learning is a step ahead from machine learning. ये न्यूरल नेटवर्क्स का प्रयोग करता है. न्यूरल नेटवर्क्स आर जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन्स जिसमें डिफरेंट नोड्स होते हैं. इट कैन क्रिएट इन्फ्रेंसेस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. Like if you want to take example of self-driving cars,
or complex tasks which requires a lot of large data sets. It also includes features such as image recognition, voice recognition. जब आप Siri का इस्तेमाल करते हैं या आप बहुत बड़ी इंटरनेट पे जाके इमेजेस के थ्रू सोर्सेज फाइंड कर लेते हैं. When we talk about generative AI, this is one such technology which is actually bringing a lot of structural transformation and actually disruption in industries related to media and entertainment. As the name suggests, generative AI, the artificial intelligence technologies or models which can generate content in the form of text, photos, videos. All these models, they are very important from examination point of view. Last year they asked what is the full form of chat GPT. So इसलिए आपको ये सारे मॉडल्स के बारे में पता होना चाहिए. टेक्स्ट टू टेक्स्ट जब आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं और प्रॉम्प्ट आपको इन द फॉर्म ऑफ प्रॉम्प्ट आपको रिस्पॉन्स मिलता है, लाइक चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, ग्रोक, and there are several others. Then text to image, when you write a prompt and you get images, you can create images from Midjourney, DALL-E. Then text to video models, with prompt you can create videos as well from VO3, Sora. So these are also very important. When we talk about quantum computing, dear students, this technology is still in its development stage, but this is the most disruptive technology which we might see in future. When this comes, all the computers, all the classical computers, smartphones which we are using these days, which you are using, they will become redundant. The classical computers we use, while computing, they use bits, which is something which is either 0 or 1. जब हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं, दे यूज क्यूबिट्स, सो दिस वैल्यू इज प्रोबेबिलिस्टिक. टू मेक इट सिंपल, जब हम क्लासिकल कंप्यूटर्स की बात करते हैं, वाइल कंप्यूटिंग दे यूज द बिट्स होते हैं इधर 0 और 1. इन क्यूबिट्स एनी वैल्यू कैन साइमल्टेनियसली बी बोथ 0 and 1 टुगेदर और अ वैल्यू इन बिटवीन. सो इससे जो कंप्यूटिंग होती है, इट कैन कंप्यूट, कैलकुलेट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन अ फास्टर वे. किसी चीज को जो क्लासिकल कंप्यूटर थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लेगा, इट कैन कैलकुलेट विद इन अ डे. Which one of the following technologies is the context in which term qubit is mentioned? Cloud services, quantum computing, visible light communication technologies, or wireless communication technologies? The right answer would be the quantum computing. The next emerging technology is Internet of Things. Now internet is not confined to your laptops or computers. You will see around yourself that there are a lot of smart objects. Your smart watch, smart shoes, smart refrigerator, smart doorbell, smart gym equipments, smart speakers, anything which can be connected through internet. The primary objective of Internet of Things is to create smart objects which can create data, collect data, share data with different devices and users in real time. It has a lot of application in our day-to-day life. IoT has the potential to bring a transformation in the cities also. एक नई तरह की cities की हम परिकल्पना करते हैं भविष्य में, जो IoT के माध्यम से बनेगी, जिनको हम स्मार्ट सिटीज़ कहते हैं. स्मार्ट सिटीज़ में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सब इंटरनेट से कनेक्टेड होगा. बेशक वो छोटे से छोटे ट्रैश बिन्स हों, उनको जब खाली करने के लिए वो एक अलार्म जारी कर देंगे. चाहे वो एक ब्रिज हो जिसमें सेंसर्स लगे होंगे, जो उसमें अगर कोई रिपेयर की ज़रूरत है वो हमको बता देगा, या इतने सर्वेलेंस कैमराज होंगे जिसमें अगर कोई भी ऐसी गतिविधि हो रही है जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है तो वो हमको सचेत कर देगा. जो स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट है वो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से ही पूरा हो सकता है. जब हम IoT की बात करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, इससे ही एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट होता है यूबिक्विटस कंप्यूटिंग. यूबिक्विटस का अर्थ होता है हर जगह किसी चीज़ का होना. तो जब हम IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं, इसका अर्थ ही है कि जो इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ है वो सिर्फ लैपटॉप या कंप्यूटर तक सीमित ना रहकर हर जगह उसका प्रयोग होना. तो जब हम यूबिक्विटस कंप्यूटिंग कहते हैं, कंप्यूटिंग से हमारा अर्थ है डेटा कलेक्शन करना, डेटा शेयर करना. ये सिर्फ
लैपटॉप्स या स्मार्टफोन्स तक सीमित ना रह के सारे ऑब्जेक्ट्स आपके अराउंड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे कि वो आपके स्मार्ट वॉच है, आपके शूज़ हैं, आपके कपड़े हैं, आपकी स्ट्रीट लाइट्स हैं, आपकी डोर बेल है, आपका रेफ्रिजरेटर है, आपका टेलीविज़न है, आपके कैमराज हैं, हर चीज़ में जब ये लागू हो जाती है चीज़ तो हम उसको यूबिक्विटस कंप्यूटिंग कहते हैं। अब इससे एक क्वेश्चन भी पूछा गया था इसी साल, यूबिक्विटस कंप्यूटिंग मीन्स द केपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटिंग एवरीवेयर, क्रिएटिंग creative computing ideas, designing layouts for interactive computing, planning and designing computational products। तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया। इसका अर्थ होता है कि जब इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से हर एक ऑब्जेक्ट में जब कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज आ जाती है उसको हम यूबिक्विटस कंप्यूटिंग कहते हैं। सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1। This question was asked this year only. Very recently you will find a lot of questions are being asked from this topic. Moving forward, dear students, let us discuss about few immersive technologies which are bringing a lot of disruption and transformation in e-commerce and media and entertainment industries. So first is virtual reality and we have to understand it in context of augmented reality. इससे आपके क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जब हम वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ एन इमर्सिव एक्सपीरियंस वेयर यू यूज़ दोज VR ग्लासेस, आपने देखे होंगे इस तरह के ग्लासेस, through which you get transported to altogether different world. It simulates 3D environment. It is being consistently being used in a lot of training applications which are related to military, then even car driving. You can simulate that environment. Then there is augmented reality. जब हम augmented reality की बात करते हैं, it is just a superimposition of some objects in the real world. इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होगा गूगल मैप्स। जब आप गूगल मैप्स यूज़ करते हैं तो अगर आप अपने कैमरे को ऑन करते हैं तो रियल वर्ल्ड में वो या तो एरोज हो गया या शॉप्स हो गई या आपके लिए डायरेक्शंस हो गई, उसको सुपर इम्पोज करता रहता है। अगर और आपको एग्जांपल्स चाहिए तो बड़े सारे गेम्स होते हैं जैसे कि पोकेमॉन गो हो गया, एंग्री बर्ड्स हो गया। अगर आप अपना कैमरा ऑन करते हैं तो रियल एनवायरनमेंट के अंदर आप कुछ ऑब्जेक्ट्स का सुपर इम्पोजिशन देखते हैं। सो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। मोबाइल गेम्स वर द फर्स्ट टू पॉपुलराइज डैश विच यूजेज एन इमेज ऑफ एन एक्चुअल प्लेस और थिंग्स एंड एड्स डिजिटल इंफॉर्मेशन टू इट। तो अगर हम बात करें एक्चुअल एनवायरनमेंट की, जब उस पर आप ऑब्जेक्ट्स को सुपर इम्पोज करते हो, इट इज़ ऑगमेंटेड रियलिटी। अगर उसके कॉन्ट्रास्ट में देखें, व्हेन वी गेट इमर्स्ड इनटू एन ऑल टुगेदर सिंथेटिक वर्ल्ड, इट इज़ वर्चुअल रियलिटी। डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। कभी आपने सोचा है जब हम नेटफ्लिक्स की बात करते हैं, अमेज़ॉन प्राइम की बात करते हैं, इनके ऊपर जो इतनी लाखों करोड़ों फिल्म्स हैं ये स्टोर कहाँ होती है? क्या इनके पास इतनी बड़ी बड़ी हार्ड ड्राइव्स हैं जिनमें ये सारी फिल्म स्टोर होती है, या इनके एक इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं? दे ऑल आर स्टोर्ड ऑन क्लाउड। जब हम डिजिटल कंप्यूटिंग की बात करते हैं, इस इंफॉर्मेशन सोसाइटी में एप्लीकेशन वेबसाइट्स की बात करते हैं, सो वी नीड अ लॉट ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। बहुत बार इन सब को खरीद पाना हम सब के लिए पॉसिबल नहीं होता और बहुत बारी ये फीजिबल भी नहीं होता। जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो ये एक इस तरह की टेक्नोलॉजी है जिसमें आप हार्डवेयर, सर्वर्स, स्टोरेज फिजिकल फॉर्म में लिमिट ना होके आप इंटरनेट पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसका एग्जांपल है कि आपके पास गूगल ड्राइव है, आपको एक पेन ड्राइव की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी अपना डेटा किसी भी कंप्यूटर से गूगल ड्राइव से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको एक और रेलेवेंट एग्जांपल चाहिए, आप सभी बच्चे अपने जीवन में MS वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब मैं गूगल डॉक्स की बात करता हूँ तो गूगल डॉक्स एक ऐसी क्लाउड सर्विस है जो आप ऑन सब्सक्रिप्शन उसको कहीं से भी इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। आपको एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपको पहले माइक्रोसॉफ्ट 365 को इंस्टॉल करना पड़ता था। तो जब हम क्लाउड सर्विसेज की बात करते हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स: सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ वेरी रिलेवेंट एग्जाम्पल। फ़र्ज़ कीजिए अगर आपको एक ई-कॉमर्स स्टोर खोलना है, आप एक बहुत बड़े फैशन डिज़ाइनर हैं एंड यू वांट टू लिस्ट आउट ऑल योर डिज़ाइंस इन अ फॉर्म ऑफ अ ई-कॉमर्स स्टोर।
सो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वेयर यू गेट एंड टू एंड सर्विस, आपको एक पूरा का पूरा वेबसाइट एप्लीकेशन बिल्ट मिलेगा। आप शॉपिफाई पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको एंड टू एंड आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन, पूरी की पूरी आपकी जो वेबसाइट है आप उसको बिल्ड कर सकते हैं, अपने स्टोर को रजिस्टर कर सकते हैं। दिस इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यहाँ पे बस आपको अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है, उनके प्राइसेस को सेट करना है और सारी चीज़ें आपको वहीं मिलेगी। सो इसमें आपके पास कंट्रोल कम होगा और जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होगा वो ही आपको सारा सर्विसेज देगा। सेकेंड थिंग इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, वेयर लेट्स से यू वांट टू ओपन अ ई कॉमर्स स्टोर, जिसमें आप एक फैशन स्टोर ओपन करना चाहते हैं। You want to design your own website, you want to customize your own application, you are going to use the platform to host it, like Google App Engine। आप अपनी एप्लीकेशन को दूसरे प्लेटफॉर्म पे होस्ट करेंगे। देन देर इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की बात करते हैं, द यूजर हैज मोर कंट्रोल ओवर their products, whether it's application, whether it's their software, whether it's their website, and the user subscribes to infrastructure in the form of networks, in the form of servers, in the form of services like data processing, in the form of cloud storage, and the rest of the control lies with the user only. So let us solve one question which was asked from this topic. Cloud computing technology that provides processing, storage, networks and other services is called. So this is infrastructure as a service. In this you have more control. जब हमने SaaS की बात करी थी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बात करी थी, it was end to end service where you just need to go to Shopify and list out your store. You need not create that application or that website, you need not host it, everything is done by the cloud service provider. Then platform as a service, where you subscribe to other platform to host your application website like Google App Engine. In infrastructure as a service, you only subscribe to expensive infrastructure in the form of storage, networks, data processing, etc. So the right answer would be infrastructure as a service. With this, let's close this lecture. If we talk about emerging technologies, there are several other technologies as well, like blockchain, 5G, then 3D printing, but we have to limit it for paper 1. If you wish, you can read more about other emerging technologies. Dear students, this is a homework question for all of you. Which of the following is not an emerging technology? I hope by the end of this lecture आपके पास इस सवाल का जवाब होगा. You can give the right answer in the comment box and I'll give you a prompt reply. With this, let us close this lecture. And there is one more PYQ test. एक टेस्ट हमारी एप्लीकेशन में है जिसमें इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं आपको विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। एंड वी हैव एडेड फ्यू मोर क्वेश्चंस फ्रॉम अदर एग्जाम्स विच हैज़ ICT इन देयर सिलेबस, सो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड यू कैन राइट टू अस इफ़ यू हैव एनी डाउट। टेक केयर, बाय बाय।